ہماری کہانی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی وہ قربان گاہ جہاں ہر قیدی موت کی خواہش کرتا تھا، وہ کہانی تو آپ کو یاد ہوگی کہ سنہ 1857 میں انگریز انتظامیہ کے خلاف پنجاب میں مزاحمت کرنے والے احمد خان کھرل کی جان لے لی گئی تو ان کے کچھ ساتھیوں کو پھانسی دی گئی، کچھ توپوں کا نشانہ بنے اور باقی کالا پانی میں بھیجے گئے۔ پانی کی ترکیب صغیر میں عام طور پر دور دراز مقام کے لیے استعمال ہوتی آئی ہے۔ محاورے میں طویل فاصلے کے لیے کالے کوس جیسے الفاظ عرصے سے رائج ہیں۔ قدیم ہندوستانی تصورات تھے کہ وطن سے دور سمندر پار کرتے ہوئے کوئی بھی شخص مقدس گنگا سے الگ ہونے کے باعث اپنی ذات سے محروم ہو جائے گا اور وہ سماج سے نکل جائے گا۔ سیاسی زبان میں کالا پانی سے مراد بحر ہند میں وہ جزیرے ہیں جہاں انگریز حکمران قیدیوں کو جلا وطن کرتے تھے۔ کلکتہ سے 780 میل جنوب میں چھوٹے اور بڑے ان تقریباً 1000 جزیروں کا مجموعہ جزائر انڈمان نکوبار کہلاتا تھا اور دارالحکومت کا نام پورٹ بلیئر رکھا گیا۔ تاریخ دان اور محقق وسیم احمد سعید اپنی تحقیق و کالا پانی گمنام مجاہدین جنگ آزادی 1857 میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے یہاں اپنا پرچم لہرانے کے علاوہ قیدیوں کی بستی اور نو آبادیات کے لیے سنہ 1789 میں پہلی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ بعد میں سنہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہوا تو پھانسیوں، گولیوں اور توپ سے انقلابیوں کی جانیں لی گئیں۔ عمر قید بھی دی گئی، مگر کسی دور دراز مقام پر ایک تزیری بستی یا قیدیوں کی کالونی کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ انگریزوں کے باغی پھر سے بغاوت مزاحمت نہ کر سکیں۔ نظر انتخاب جزائر الف نڈمان ہی پر گئی ڈر سے بھرے تھے۔ یہاں مچھر، خطرناک سانپ بچھوہے، جونکوں اور بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار تھی۔ فوجی ڈاکٹر اور آگرہ جیل کے وارڈن جے پی واکر اور جیلر ڈیوڈ بیری کی نگرانی میں باغیوں کو لے کر پہلا قافلہ 10 مارچ سنہ 1858 کو ایک چھوٹے جنگی جہاز میں وہاں پہنچا۔ کھرل کے ساتھی ممکنہ طور پر اسی جہاز میں لے جائے گئے ہوں گے۔ پھر کراچی سے مزید 733 قیدی یہاں لائے گئے اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ سعید لکھتے ہیں کہ کالا پانی ایک ایسا قید خانہ تھا جس کے در و دیوار کا بھی وجود نہ تھا۔ اگر 4 دیواری حدود کی بات کیجیے تو ساحل سمندر تھا، اور اگر فصیل کی بات کیجیے تب بھی ٹھاٹھیں مارتا ہوا ناقابل عبور سمندر ہی تھا۔ قیدی قید ہونے کے باوجود آزاد تھے، لیکن فرار کے سارے راستے مسدود، بند اور فضائیں مسموم و زہریلی۔ جب قیدیوں کا پہلا قافلہ وہاں پہنچا تو خوش آمدید کہنے کو صرف پتھریلی و سنگلاخ زمین، گھنے اور سر بفلک درختوں والے ایسے جنگل تھے جن سے سورج کی کرنیں چھن کر بھی زمین بوس نہیں ہو سکتی تھی۔ کھلا نیلگوں آسمان، ناموافق اور زہریلی آب و ہوا، پانی کی زبردست قلت اور دشمن قبائل۔ دلی کے ان محقق کے مطابق انڈمان ہی کو ہندوستان کی جنگ آزادی کی قربان گاہ قرار دیا جانا چاہیے۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، فرنگیوں، ان کے مصاحبین، ملازمین اور عملے کے دیگر افراد کے لیے تو خیمے نصب ہو گئے، لیکن قیدیوں کو جھگی، چھیون پڑیاں اور استبل نما احاطے بھی عرصے بعد ہی نصیب ہو سکے، جہاں نہ کوئی فرش تھا نہ رہائش کی اشد ضروریات کا کوئی سامان۔ جھونپڑیوں کا یہ حال تھا کہ بارش کے دوران اندر اور باہر یکساں کیفیت ہوا کرتی۔ سارا دن قید بامشقت کی وجہ سے بے پناہ اور ناقابل تصور محنت کرنا، ظلم و تشدد کا شکار رہنا اور پھر بدترین غذا پر قناعت کر کے مسلسل موت کے لیے زندہ رہنا ہی قیدیوں کی قسمت تھی، جس کی وجہ سے ہر قیدی موت ہی کا متمنی رہتا تھا، کیونکہ مصائب سے نجات کا واحد ذریعہ موت ہی تھی۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، عالم دین غالب کے ہم عصر اور دوست علامہ فضل حق خیر آبادی سنہ 1857 کی جنگ آزادی کے پیش رو تھے۔ لکھاری ثاقب سلیم کے مطابق انہوں نے انگریزوں کے خلاف جامع مسجد دلی میں جہاد کا فتویٰ دیا۔ خیر آبادی کو 4 مارچ سنہ 1859 کو قتل پر اکسانے اور بغاوت کے الزام میں بطور شاہی قیدی تا زندگی حبس قید، بابور دریائے شور، کالا پانی اور تمام جائیداد کی ضبطی کی سزا سنائی گئی۔ خیر آبادی نے اپنی کتاب الثور علی ندیہ میں قید کا احوال لکھا۔ نیچے دیے گئے چند جملے اسی کتاب سے ترجمہ ہیں۔ کھری پر چھپر تھا جس میں رنج و مرض بھرا ہوا تھا، ہوا بدبودار اور بیماریوں کا مخزن تھی۔
बीमारियां बेशुमार, खारिश व क़ुबा, वो मर्स जिससे बदन की खाल फटने और छिलने लगती है, आम थी। बीमार के इलाज, तंदुरुस्त के बकाए सेहत और ज़ख्म के इंदिमाल की कोई सूरत ना थी। दुनिया की कोई मुसीबत यहाँ की अलमनाक मुसीबतों पर क़ियास नहीं की जा सकती। जब कोई इनमें से मर जाता है तो खकरोब उसकी टांग पकड़कर खींचता हुआ गुस्ल व कफन के बगैर उसके कपड़े उतार कर रेत के तौदे में दबा देता है। ना उसकी कब्र खोदी जाती है, ना नमाज जनाजा पढ़ छोटिए जाती है। घने जंगल में जंजीरों में जकड़े कैदियों को जज़ायर रास, ह्यूलाक और चिथम पर मशक्क़त का हुक्म दिया गया। गैर आबाद जजीरे के जंगलात की सफाई की मशक्क़त खैर आबादी और उनके साथियों को करना होती थी। रात में इन गैर आबाद इलाकों में भी जंजीरों में कैद करके रखा जाता था। खैर आबादी कहते हैं कि अपनी आंखों से दूसरे कैदियों को बीमार होते हुए भी बेड़ियां पहने और जंजीरों से खींचे जाते हुए देखता हूं। एक सख्त, तेज और गलीज इंसान तकलीफों पर तकलीफें पहुंचाता और भूखे प्यासे पर भी रहम नहीं खाता। सुबह व शाम इस तरह बिसर होती है कि तमाम बदन जख्मों से छलनी बन चुका है। रूह को तहलील कर देने वाले दर्द व तकलीफ के साथ जख्मों में इजाफा होता रहता है। वो वक्त दूर नहीं जब ये फुंसियां मुझे हलाकत के करीब पहुंचा दें। फजल हक खैराबादी ने अंडमान में वफात पाई और वहीं दफन हुए। जफर थान्युसरा रियासत हरियाणा के इलाके थान्युसर से थे। पहले सजाए मौत और फिर काला पानी की सजा हुई। अपनी किताब काला पानी अलमारूफ तवारीख अजाइब में 11 जनवरी सना 1866 को जज़ायर अंडमान के साहिल पर पहुंचने का मंजर यूं बताते हैं। दौर से समंदर के किनारे काले पत्थर ऐसे मालूम होते थे जैसे भैंसों के झुंड पानी में फिर रहे हों। तब तक वो इलाका निस्बतन साफ हो चुका था। कैदी जंगलात की सफाई के साथ साथ नए दरख्त भी लगा रहे थे। इससे पहले अंग्रेज इंतजामिया ने ख्वातीन कैदियों को भी वहां भेजना शुरू कर दिया था। ख्वातीन कैदी और शादी। हबीब मंजर और अशफाक अली की तहकीक है कि इब्तिदाई दौर में बरतानवी इंतजामिया शादी और फिर बच्चों की पैदाइश को कैदियों की बहाली और सुधार का एक जरिया समझती थी। रास, बंगाल, बम्बे, शुमाल मगरबी सूबा, उदय और पंजाब वगैरह से ऐसी ख्वातीन को भी अंडमान भेजा गया जो सज़ा के कुछ साल बरतानवी हिंदुस्तान की जेलों में गुजार चुकी थी। पोर्ट ब्लेयर के सुपरिंटेंडेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खत लिखा कि पोर्ट ब्लेयर में ख्वातीन कैदियों की तादाद कम हो रही है और अगर पिछले 3 साल में भेजी जाने वाली तादाद से ज़्यादा ख्वातीन कैदियों को ना भेजा गया तो ना 5 साल की सज़ा भगत लेने के बाद उनकी शादी का निज़ाम जारी रखा जा सकेगा और ना काटने बनने के वो काम हो सकेंगे जिनसे हुकूमत को बहुत ज़्यादा बचत होती है। सेल्फ सपोर्टर कैदी अगर शादी करना चाहते तो वो एक मखसूस दिन ख्वातीन कैदियों में से किसी एक का इंतखाब करते और अगर वो राज़ी होती तो इंतज़ामिया उनकी शादी करवा देती और इसे कानूनी शक्ल दे देती। सेल्फ सपोर्टिंग जोड़े को एक सेल्फ सपोर्टिंग गांव में रहने को जगह दे दी जाती। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताहम ख्वातीन कैदियों के अंडमान भिजवाने का सिलसिला चंद बरस ही चल सका। सना 1897 में 2447 सेल्फ सपोर्टर्स में 363 ख्वातीन थीं। बीमारी और मौत की शरह ख्वातीन में भी ज़्यादा थी। थान्युसरा ने जिन कश्मीरी खातून से शादी की वो बन ब्याही मां बनने और बच्चे को मारने के जुर्म में सज़ा पा रही थी। थान्युसरा 17 साल 10 माह के बाद अंडमान से 9 नवंबर सना 1883 को हिंदुस्तान रवाना हुए। वो तब वहीं थे जब सना 1872 में पोर्ट ब्लेयर के दौरे के दौरान वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड म्यू को एक कैदी ने कत्ल कर दिया था। फरार की कोशिश पर फांसियां। देनापुर की छौनी में बगावत के मुजरिम कैदी नारायण पहले शख्स थे जिन्होंने फरार होने की कोशिश की। उन्हें पकड़ा गया, डॉक्टर वाकर के सामने लाया गया और फांसी दे दी गई। तारीख अंडमान जेल में लिखा है कि मार्च सना 1868 में 238 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की। अप्रैल तक वो सब पकड़े गए। एक ने खुदकशी कर ली और वाकर ने 87 को फांसी देने का हुक्म दिया। फांसियों की खबर कलकत्ता पहुंची तो काउंसिल के सदर जेपी ग्रांट ने इस पर अफसोस का इजहार करते हुए एक खत लिखा कि वो मैं फांसी के जवाज के तौर पर उनके वाकर के ख्यालात में से किसी को तस्लीम नहीं कर सकता।
लेकिन वाकर सरकारी मजम्मत से बच गए और ग्रांट के हुक्म पर ऐसा बंदोबस्त किया गया कि कैदी दोबारा कभी भागने और आवाम को उकसाने के काबिल न हो। ताहम कैदी महताब और चेतन 26 मार्च 1872 को फरार हो ही गए। खलीज बंगाल में 750 मील सफ़र खुद साख्ता रॉकेट्स पर किया। एक बरतानवी बहरी जहाज के अमले को उन्होंने कायल किया कि वो तबाह होने वाली कश्ती के माहीगीर हैं। आखिरकार उन्हें लंदन में स्ट्रेंजर्स होम फॉर एशियाटिक्स में छोड़ दिया गया। उनको खिलाया गया, कपड़े पहनाए गए और एक बिस्तर दिया गया, लेकिन जब वो सो रहे थे तो मालिक कर्नल ह्यूज ने उनकी तस्वीर खींची और हुकूमत को भिजवा दी। एक सुबह जब महताब और चेतन बेदार हुए तो अपने आप को बोहे में जकड़ा पाया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें हिंदुस्तान जाने वाले जहाज पर सवार कर दिया गया। 19वीं सदी के आखिर तक तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ लिया। यूं अंडमान भेजे जाने वाले कैदियों की तादाद में इजाफा हुआ और एक आला हिफाजती जेल की ज़रूरत महसूस की गई। कैदियों ही को जेल तामीर करना पड़ी। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगस्त सना 1889 से बरतानवी राज में होम सेक्रेटरी चार्ल्स जेम्स लाइल को पोर्ट ब्लेयर में तज़ीरी आबादी पर तहकीक का काम भी सौंपा गया। ये वही लाइल हैं जिनके नाम पर 1890 में लाइलपुर की बुनियाद पड़ी और सना 1979 में इसे फैसलाबाद का नाम दिया गया। लाइल और बरतानवी इंतज़ामिया के एक सर्जन एएस लेथबुर्ज ने यह नतीजा अखज़ किया कि जज़ायर अंडमान भेजने की सज़ा अपने मकसद में नाकाम रही है और ये कि मुजरिमों ने हिंदुस्तानी जेलों में कैद रहने के बजाय वहां जाने को तरजीह दी। लाइल और लेथबुर्ज ने सिफारिश की कि जलावतनी की सज़ा में एक इक्ताइज़ मरहला होना चाहिए जिसके तहत कैदियों को आमद पर सख्त सलूक का निशाना बनाया जाए। बाशफोर्ड और कैरोलिन स्ट्रेंज के मुताबिक उसका नतीजा सेलुलर जेल की तामीर था, जिसको दूर दराज तज़ीरी मकाम के अंदर इखराज और तन्हाई की जगह कहा गया। सना 1896 में सेलुलर जेल की तामीर का आगाज हुआ। बर्मा से ईंटें आईं और तरफा तमाशा देखिए कि तामीर इन्हीं कैदियों को करना पड़ी जिन्हें खुद इसमें कैद होना था। 5 लाख से ज़ायद रुपयों के खर्च से सेलुलर जेल की तामीर सना 1906 में मुकम्मल हुई। जेल के दरमियान एक टावर से कैदियों की सख्त निगरानी की जाती, जिनको 13.5 फुट लंबे और 7 फुट चौड़े 700 कमरों में रखा गया था। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जेल के कमरों में रोशनदान के लिए गुंजाइश पैदा की गई तो कुछ इस अंदाज से कि इससे हुआ भी ना आ सके। पेशाब और पाखाने के लिए सुबह, दोपहर और शाम के औकात मुकर्रर किए गए। इस दौरान किसी को हाजत हो तो उसे सिपाहियों के डंडे खाना पड़ते। फांसी घर भी बनाया गया ताकि अंग्रेज जिसे चाहे ठिकाने लगा सके। कैदियों के ज़हनी तशद्दुद के लिए जेलर कोठरियों को बंद करके चाबी अंदर फेंक देते थे, ताहम ताले इस अंदाज से बनाए गए थे कि कैदी जेल के अंदर से ताले तक ना पहुंच सकें। अंदाज से बनाए गए थे कि कैदी जेल के अंदर से ताले तक ना पहुंच सकें। के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्यूमिनियम की प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी पीने के लिए और एक रफ हाजत के लिए और एक कंबल। अक्सर औकात कैदियों के लिए एक छोटा सा बर्तन काफ़ी नहीं होता था और इसलिए उन्हें रफ हाजत के लिए कोठरी के एक कोने का इस्तेमाल करना और फिर उन्हें अपनी ही गंदगी के करीब लेटना पड़ता था। कैद तन्हाई नाफिज की गई क्योंकि बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत यकीनी बनाना चाहती थी कि सियासी कैदियों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। सियासी कैदियों में फजल हक खैर आबादी, युगेंद्र शकलन, बिट्टो किशोर दत्त, बाबा राव सावरकर, विनायक दामोदर वीर सावरकर, सिचंदर नाथ सान्याल, हरे कृष्णा कोनार, भाई परमानंद, सोहन सिंह, सबोदे राय और तरियलोकिया नाथ चक्रवर्ती, महमूद हसन देवबंदी, हुसैन अहमद मदनी और जफर थान्युसरा के नाम नुमाया मिलते हैं। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूँगा। शुक्रिया।